Good morning, students. Welcome to HKM Public School, Ramatan Vidyapeeth. This is the class of physics, class 12th, electrostatics chapter. So, this is numericals based on Coulomb's law. So, students, let's study about the question. The question is what is the force between two small charged spheres having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb? Okay, so we have actually uh, two charged spheres. Okay, just a minute. So go through the question and then we will solve this. Okay, yeah. So we have two small charged spheres. Okay, the charges are 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed at 30 centimeter apart in air, and we need to calculate force. So how will we calculate force? So guys, what is the formula? The formula is, yes, recall the formula. It is F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Alright. So K is the electrostatic force constant, Q1 is the first charge, Q2 is the second charge, R is the distance. So what is Q1? Q1 is actually 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb, and Q2 is 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Okay, we know that the value of K, so K, which is electrostatic force constant, K is equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. Okay, so this is the value of K, and yes, R is equal to the distance. R is equal to 30 centimeter. 30 centimeter. We know that 30 centimeter is nothing but 30 into 10 raised to power minus 2 मीटर. ठीक है, 30 into 10 to the power minus 2 meter. Yes, so now put the values and calculate the force. So force will be F is equal to 9 into 10 to the power 9. Q1 is 2 into 10 to the power minus 7. All we are doing, we are just putting values. है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो. Q2 की वैल्यू पुट कर दो 3 into 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर है, इसका 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 900 into 10 to the power minus 4. Alright, so this is 10 to the power 9. So let me change the color of pen. So 10 to the power 9 minus 7 तो ये minus 14 तो यही हो गया. अच्छा, 10 to the power 9 और 10 to the power minus 7 को आप हटा दो. So this will be 10 to the power 2. 10 to the power 2 और 10 to the power minus 7 है, तो it becomes actually 10 to the power minus 5. है ना, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. ये 10 to the power 2 है, ये minus 4 है, तो इनको अगर मैं दोनों को हटा दूं तो ये 10 to the power minus 2 रह गया, तो ये minus 5 है, minus 2 है, इसको हटा दो, so it is only 10 to the power minus 3. तो पहले तो पावर सॉल्व हो गई. नाउ इट इज 9, 9 से 9 आप कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, so it is actually 6 into 10 to the power minus 3. So you can write in better manner. So F is equal to 6 into 10 raised to power minus 3 Newton. Okay, hope this answered your question. So let's move to the next question. So students, in this question, let's first study the question. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge. Let me see here. Yeah.
So here's the question: the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन. ओके, सो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको चार्ज गिवन है और फोर्स गिवन है और आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है. इस क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आपको डिस्टेंस बताना है. अब डिस्टेंस बताने के लिए क्या करना है ये आपको इसमें देखना पड़ेगा. सो वही कूलम्स लॉ आपको लगाना है. कूलम्स लॉ लगाओ और उसका बताओ फॉर्मूला क्या होगा. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से पहले शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद ओके. सो द फॉर्मूला इज एक्चुअली यहाँ मैं लिखता हूँ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पे ये तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास. सो फोर्स जो है वो गिवन है. फोर्स इज नथिंग बट F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन. ठीक है, Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कुलॉम विच मीन्स 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलॉम है ना. 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलॉम. और जो Q2 है वो भी वही है हमारे पास, वो है 0.8. तो -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कुलॉम है ना. 10⁻⁻6 कुलॉम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये कोई बड़ी बात नहीं है. यहाँ पे ऑल यू नीड टू कैलकुलेट इज आर. आपको निकालना है आर की वैल्यू. अब आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट कैलकुलेशन करना है, नथिंग एल्स. तो द फॉर्मूला यहाँ पे इस फॉर्मूला से अब इस फॉर्मूला से यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो आर विल बी इक्वल टू, सीधा अगर देखो तो आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एफ डिवाइड में आ जाएगा. सो दिस विल बी नथिंग बट के Q1 Q2 अपॉन एफ. ठीक है, सो आर इज इक्वल टू रूट में, अब के की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है, Q1 है हमारे पास 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 जो है हमारे पास वो है अब देखो ये कूलॉम्स लॉ है तो इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा भाई. वी विल बी ओनली डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड. तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एफ. फोर्स इज 0.2. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा R इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करना है. सो 0.2 न्यूटन में है, बाकी सारा हमारे पास सब कूलॉम में आ चुका है. सो यू कैन बी कैलकुलेटिंग दिस. R विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट मी टेल यू यूजिंग हाईलाइटर पेन. सबसे पहले तो पावर्स को कैलकुलेट करना है. ये जैसे ये पावर हो गई हमारे पास, दिस इज द पावर, दिस इज द पावर. तो ये -12 तो यही हो जाएगा हमारे पास. अच्छा, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो, ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा देना. सो दिस विल बी 2. ओके, यहाँ पे भी एक पॉइंट है हमारे पास. सो ये इजी टू कैलकुलेट क्वेश्चन आपका बन जाएगा. तो जो r की वैल्यू यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r, दिस विल बी नथिंग बट r will be equal to 12 into 10⁻⁻2 meter. Okay, also known as 12 centimeter. तो ये आपको 12 सेंटीमीटर मिल गया. ठीक, ये लाइन जो है जब तक सीधी नहीं बनेगी मैं इसको बनाता रहूंगा. Okay, so this was the first question.
ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास. नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? गाइस, एक चीज दिमाग में रख लेना कि दिस इज चार्ज q1 एंड दिस इज चार्ज q2 separated by a distance r. so you will be only knowing one thing. भाई अगर ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r. तो नाउ F12 अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, F12 will be equal to minus F21. so this means फोर्स दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट होता है. सो फोर्स दोनों का क्या होता है? दे बोथ विल exert same force on each other, same force in magnitude and you can say opposite in direction. भाई एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, है ना भाई. सपोज दिस इज प्लस क्यू, है ना, सपोज दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. सो ये जो प्लस है, ये इसको, ये माइनस को, यू नो, फोर्स, ये पॉजिटिव जो है, यूजिंग, लेट मी शो यू यूजिंग हाइलाइटर पेन. तो ये जो हमारे पास है ना, ये प्लस क्यू, ये इस माइनस को अपनी ओर ऐसे खींचेगा और ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर ऐसे खींचेगा. ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम होगा. मैग्नीट्यूड दोनों का 0.8 न्यूटन ही होगा. ठीक है, ये बात है. तो ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर ओनली 2 क्वेश्चंस. तो इसको आप पढ़ो, इसको रिवाइज करो, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे पहले कुछ और प्रॉपर्टीज कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.